Hello students, good evening to you all. In our today's video, we will start with the general concepts of the life sciences, and particularly in today's video, we will discuss about the cell or the introduction to the cell. The study of cell is also called the cell biology. So we'll start with the cell biology first. We will also study the structure of the plasma membrane. The plasma membrane is also called the cell membrane. So we'll first start with the cell. Cell जो होती है वो आपकी smallest unit होती है किसी भी life की. Cell is the smallest unit of the life. A cell is that unit or that smallest unit which is structurally and functionally complete. लाइफ यूनिट तो बहुत सारी हो सकती हैं छोटी. फॉर एग्जांपल डीएनए की बात करें, इट इज़ ऑल्सो यूनिट ऑफ लाइफ and it is even smaller than the cell, but it is not functionally complete. So that unit which is functionally complete, for example, if we'll talk about the mitochondria can also perform various function in the living organisms, and structurally it is also complete, but functionally it is not complete. It cannot perform all the functions of a particular living organism. So that smallest unit which can undergo all the functions that an organism wants for their survival is called the cell. Literally, the cell means the compartment. That compartment which is enclosing the all cell organelles like mitochondria, Golgi bodies, nucleus which is enclosing the DNA. So cell is that compartment which is having all the cell organelles responsible for the different function like synthesis of the fats or the synthesis of the carbohydrates, breakdown of the carbohydrates or the breakdown of the proteins or the synthesis of the proteins, and nucleic acids like DNA and the RNA are also enclosed inside the cell, each and every cell. सो सेल की अगर डिस्कवरी की बात करें, सो रॉबर्ट हुक वाज द डिस्कवरर ऑफ द सेल. ही फर्स्ट ऑब्जर्व द सेल्स. रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखी थी वो आपकी कॉर्क सेल्स देखी थी. और कॉर्क सेल्स किस में मिलती है? प्लांट्स में, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है. बट वी नो द कॉर्क सेल्स आर डेड सेल्स. सबसे पहले सेल्स देखी रॉबर्ट हुक ने थी, बट दे ऑब्जर्व द डेड सेल्स इन द 16th century. सो फर्स्ट लिविंग सेल वाज सीन बाय द another scientist. It is generally asked that who watched the first living cell. So it is the Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek was the scientist which observed the first living cell, and Robert Hooke was the scientist which observed the plant cell or which firstly observed the cells. There is another important term. There are some basics that you can undergo from various books like cell theory. Cell theory was given by the Sladen and Swan. The scientists' names are generally asked in various MSc entrance examination of different universities. Sladen and Swan was the two scientists which give the cell theory. स्लेडन जो थे ये एक बॉटनिस्ट थे. सो इन्होंने प्लांट सेल पे ये वर्क कर रहे थे. इन्होंने इन्होंने प्लांट सेल्स पे ऑब्जर्व करके जो है अपनी सेल थ्योरी को पोस्टुलेट किया. एंड स्क्वान वाज अ जूलॉजिस्ट. तो उन्होंने जो है एनिमल सेल्स पे जब वो वर्क कर रहे थे तब उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए. सो जॉइंटली इन्होंने सेल थ्योरी दी इन 1838. अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी उन्होंने कुछ अपने पोस्टुलेट्स बताए लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल्स. सेल्स के बाई प्रोडक्ट होते हैं और सेल्स से ही बने होते हैं. लोवेस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सेल ही होगी. सेल से टिश्यूज बन सकते हैं, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन होंगे बीच में. तो ये जो पूरा जो लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी क्या है? सेल होती है. ये सेल थ्योरी में बताया गया था. सेल थ्योरी की जो मॉडिफिकेशन करी वो करी थी एक अनदर साइंटिस्ट ने, दैट इज दी वर्चो. रेडोल्फ वर्चो जो है उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया कि जो एक सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या करती है? अराइज करती है. दिस सेल इज बीइंग मेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. और प्लांट्स में तो बहुत कॉमन है ये चीज़. मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है वो बहुत सारी सेल्स को प्रोड्यूस करती रहती हैं. सो वर्चो मॉडिफाइड द सेल थ्योरी. ओके, सो स्लेडन एंड स्वान गिव द सेल थ्योरी एंड रेडोल्फ वर्चो modified the cell theory. If we talk about some examples of the cell, so a bacteria is also a cell, a single cell bacteria which are prokaryotes. Nerve cells, red blood cells, RBCs, meristematic cells, permanent cells like parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. These are the examples of cell in the plants. Along with these some like PPLO,
Pleuropneumonia like organisms, those are also the cells. An egg is also a cell. So these are some examples of the cells. If we talk about the data like smallest cell, so the smallest cells is the PPLO, the Pleuropneumonia like organisms. The PPLO have the diameter of 0.3 μm. Okay, if we talk about the largest cell, so largest cell is the ostrich egg. It may vary from 170 to 180 mm or approximately even up to centimeters also. So it is the largest cell, which is an ostrich egg, can be easily seen by the naked eyes, and it is the smallest cell, the PPLO, 0.3 μm. If we talk about a bacteria, generally a bacteria ranges from 3 to 5 μm, 10x larger than the PPLO. If we talk about the viruses generally ranges from 1 to 2 micrometer. These are generally smaller than the bacteria. The nerve cells are longer. शेप जो होती है वो भी वेरी करती है हमारे सेल्स में. नर्व सेल्स जो होती हैं वो लॉन्गर होती हैं. लाइक पेरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं आपकी वो हेक्सागोनल हो सकती हैं, राउंडेड हो सकती हैं. ओके, एंड कुछ सेल्स जो होती है वो कॉल्यूमुलर होती है या इरेगुलर भी हो सकती हैं. सो these are the basics about the cell. ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग या कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग सेल्स जो होती है मेनली 2 टाइप्स की होती हैं. One is the prokaryote cells, another is the eukaryotic cells. Pro means the very basic cells or the primitive cells that is being arising first, and eukaryotic means some advanced cells. Okay, advanced karyo means the chromosomes or the karyotype organization. So in prokaryotic cells, we'll talk about some differences. The prokaryotic cells are originated very first, approximately 3.5 billion years ago. प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले आए थे, इसलिए इनको प्रो बोलते हैं. वेरी बेसिक सेल, ऑलवेज सिंगल सेलुलर, और जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन था वो भी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नहीं था. दैट वाज वेरी सिंपल. 3.5 बिलियन ईयर्स अगो प्रोकैरियोट्स आए थे. 1.5 बिलियन ईयर्स अगो अप्रोक्सीमेटली जो है यूकैरियोट्स आए थे. इट मीन्स प्रोकैरियोट्स आर ओल्डर. प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? बहुत ही बेसिक सेल होती है. जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो प्रेजेंट होगा बट नेक्ड होता है, लाइक नेक्ड डीएनए एंड दी नेक्ड आरएनए दैट इज बीइंग नॉट एनक्लोज्ड इनटू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर एनक्लोज नहीं होता. यूकैरियोटिक में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रॉपर, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. ओके, ऑरिजिन में डिफरेंस है. नेक्ड आरएनए होता है, बिल्कुल प्रिमिटिव सेल्स हैं, तो इनमें क्या है? हमारा न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. साइज जो होता है जनरली प्रोकैरियोट्स के सेल्स का जो होता है वो स्मॉल होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का साइज क्या होता है? हमारा लार्ज एज कंपेयर टू दी प्रोकैरियोटिक सेल. सो फर्स्टली वी विल रिमाइंड दिस थिंग. Origin is the 3.5 billion years ago, whereas this is the 1.5 billion years ago. नेक्ड आरएनए होता है, इसमें आपका न्यूक्लियस में ऑर्गेनाइज होते हैं जेनेटिक मटेरियल. स्मॉल साइज होता है जनरली, इसका क्या होता है? हमारा लार्ज साइज होता है. अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जनरल सी बात है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर लेस कॉम्प्लेक्स, whereas eukaryotic cells will be more complex. राइबोसोम्स की अगर हम बात करें, ओके, राइबोसोम्स जो होते हैं हमारे वो 70S टाइप के होते हैं. जब हम ऑर्गेनाइज डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे. जबकि जो यूकैरियोट्स हैं उनमें 70 और 80 दोनों तरह के वो होते हैं राइबोसोम्स. 80S तो हमारा जो है जनरली ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. 70S जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज. 70S राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में. माइटोसिस और जो मियोसिस होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि सेल डिवीजन नहीं होता प्रोकैरियोट्स में. जबकि यूकैरियोट्स में माइटोसिस और मियोसिस दोनों तरह के डिवीजन हमें देखने को मिलते हैं. मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा. प्रोकैरियोट्स में लाइक आपका बाइनरी फिजन वगैरह होते हैं. ओके, जबकि यूकैरियोट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कॉमन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कॉमन है. ओके, इफ नेक्स्ट थिंग, इफ विल टॉक अबाउट द सरफेस टू द वॉल्यूम रेशियो. एक चीज़ होती है सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो. जनरली पूछा जाता है कि किसका हायर होता है, प्रोकैरियोट्स का या यूकैरियोट्स का. सो जनरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. इफ यू टॉक अबाउट 2 सेल्स, दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल, दिस इज द यूकैरियोटिक सेल. जनरली सरफेस एरिया हम दोनों का सेम मानेंगे, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेल्स. ऑल्दो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो लार्ज होती हैं, बट नॉट एज मच. सो प्रोकैरियोटिक सेल में सपोज हमने सरफेस एरिया ले लिया इसका. ओके, दोनों ही आपका क्या है? राउंड है, ग्लोब है एक तरह से. ओके, सो दोनों का सरफेस एरिया ऑलमोस्ट इक्वल है. बट अगर वॉल्यूम की बात करें
तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। एक पॉइंट और हमने अभी डिस्कस नहीं किया, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज लाइक ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, ओके, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये सब जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज केवल जो है आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं दोनों में, अदरवाइज मैक्सिमम जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है वो सारी एब्सेंट होती हैं। तो किसी चीज़ में अगर ज़्यादा कंटेंट है तो उसका वॉल्यूम 100% क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी यूकैरियोटिक सेल्स का वॉल्यूम क्या होता है, हाइयर एज कंपेयर टू दी प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड सरफेस एरिया इज ऑलमोस्ट इक्वल। सो क्या होगा अगर वॉल्यूम इसका सपोज कम है, हम बात करते हैं सपोज इसका 10 वॉल्यूम हाइपोथेटिकली, सरफेस एरिया दोनों का 100 है और वॉल्यूम है 10 प्रोकैरियोट का, सरफेस एरिया उसका भी 100 है और उसका वॉल्यूम क्या होगा एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल, बहुत ज़्यादा होगा वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 20 times because it is enclosing so many organelles, so it will be 200 approximately. So if we divide this, it is the 10 and this is the 1/2 means 0.5. So surface to volume ratio यूकैरियोट का है 0.5 whereas प्रोकैरियोट्स का है 10. So surface to volume ratio प्रोकैरियोटिक सेल का ज़्यादा होता है as compared to the यूकैरियोटिक सेल. So ये भी जनरली पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें. ओके अगर किसी प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो वेरी बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपका, लाइक बैक्टीरिया की बात करते हैं, एग्जांपल्स होते हैं बैक्टीरिया में आपका जो है सेल वॉल होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन में जो है फोल्डिंग्स हो सकती हैं, सेल मेम्ब्रेन की इंसिजन्स या फोल्डिंग्स को हम मीसोसोम्स बोलते हैं। नेक्ड जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए हो या आरएनए हो सकता है आपका, बैक्टीरिया में डीएनए है। उसके बाद जो आपकी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन जो है मीसोसोम बोलते हैं, उस पर सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके फ्लैजिलम हो सकता है या सीलियाज हो सकते हैं। उसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं फ्री, साइटोप्लाज्म होता है। सो ये एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल का। बट अगर किसी यूकैरियोटिक सेल की बात करें, दिस वाज द प्रोकैरियोटिक सेल, यू कैन रेफर द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, एनी बैक्टीरियल सेल, इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक होने के अकॉर्डिंग विटकर ने जो है, विटकर ने 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, दैट वी विल डिस्कस सेपरेटली इन सम वीडियोज। विटकर के 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या किंगडम होते हैं आपके, मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी, ये 5 किंगडम होते हैं। मोनेरा में आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स और सिंगल सेलुलर, प्रोकैरियोट सिंगल सेलुलर ही होंगे, लाइक बैक्टीरिया, मोनेरा का एग्जांपल होता है बैक्टीरिया। प्रोटिस्ट में आपके क्या होते हैं, सिंगल सेलुलर होंगे, बट दैट सेल विल बी यूकैरियोटिक। मोनेरा में भी सिंगल सेल है लेकिन आपका यूकैरियोटिक नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल है, लाइक बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है आपका सिंगल सेल है लेकिन यूकैरियोटिक सेल है वो, तो इसका एग्जांपल लाइक यूग्लेना। ओके फंजाई जो होते हैं वो भी प्लांट के जैसे ही होते हैं, थैलोइड प्लांट बॉडी होती है जिस तरह से, लाइक एल्गी वगैरह उनकी तरह होते हैं, बट ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। तो इनमें भी सेल वॉल होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और एनिमल्स में यूकैरियोटिक सेल, मल्टी सेलुलर, ठीक है। एनिमल्स की ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत हायर होती है, लाइक ह्यूमंस आर आल्सो इन एनिमल किंगडम, सो वी हैव अ ऑर्गन सिस्टम और आवर ऑर्गेनाइजेशन इज मच कॉम्प्लेक्स। एनिमल्स में भी वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लोअर डिवीजन टू हायर डिवीजन और लोअर फाइलम टू हायर फाइलम। ओके सो प्लांटी की बात करें तो प्लांटी भी जो आपके क्या होते हैं, यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर। सो इट वाज सम बेसिक्स अबाउट द किंगडम। सो हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन की। प्रोकैरियोटिक सेल वाज वेरी सिंपल। अगर यूकैरियोटिक सिंपल सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, 70% तो वाटर होता है, उसके अलावा अप्रोक्सीमेटली 20 एलिमेंट्स और होते हैं, ठीक है। और उनमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे बायोमोलिक्यूल्स, जिन एलिमेंट्स के बने हुए हैं, बायोमोलिक्यूल्स लाइक लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और डीएनए एंड आरएनए। तो इन सब का ये बायोमोलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ द एलिमेंट फॉर्म एलिमेंट्स। सो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड, इन सब में कौन से एलिमेंट होते हैं मेनली, देर आर 4 एलिमेंट्स मेनली, द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन। और इनके अलावा 2 और हो सकते हैं आपके, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके हैं सल्फर और फॉस्फोरस। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, अप्रोक्सीमेटली 20 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेल में, 20 to 25 भी हो सकते हैं आपके। और 70% क्या होता है किसी भी सेल में, वाटर होता है। सो इट विल बी लाइक अ सेल, there is a word protoplast and there is another word that is the, अगर प्लांट्स की बात करें तो सेल वॉल। सेल वॉल को हटा के बाकी सारी सेल को हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट में भी आपके टोटल 2 कंपोनेंट्स होते हैं,
प्रोटोप्लास्ट में भी जो है दो तरह की चीज़ हो सकती हैं आपकी, जो आपके लिविंग कंपोनेंट है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ओके। और जो आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट है उनको इंक्लूजन बॉडीज होती है, लाइक नॉन लिविंग जो कंपोनेंट है उनको एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, और लिविंग कंपोनेंट को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म में भी आपका जो है साइटोप्लाज्म भी हो सकता है और न्यूक्लियस भी होता है। सेल विदाउट सेल वॉल इज ऑल प्रोटोप्लास्ट, so there is a difference between the protoplast and the protoplasm. Protoplast is also having the non living things like ergastic substances, okay, like oil droplets, inclusion bodies. उसके अलावा जो लिविंग कंपोनेंट है उसको सारे को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, और प्रोटोप्लाज्म में भी साइटोप्लाज्म होता है और आपका न्यूक्लियस होता है, ओके। सो दिस इज अ फैक्ट अबाउट दी सेल, कि आपका सेल है प्रोटोप्लास्ट हो सकता है और उसमें सेल वॉल हो सकती है। प्रोटोप्लास्ट में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं और आपके लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं। सो इट वाज सम बेसिक्स अबाउट द सेल। एक चीज़ और बात कर लेते हैं हम, सेल जो होती है उसके चार्ज की अगर हम बात करें तो सेल इज स्लाइटली पॉजिटिव आउटसाइड एंड एज कम्पेयर टू आउटसाइड इट इज स्लाइटली नेगेटिव इनसाइड, क्योंकि सेल के बाहर जो होते हैं बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, लाइक मैग्नीशियम एंड सोडियम, पोटेशियम ऑल्सो, सोडियम, पोटेशियम एंड दी मैग्नीशियम, तो ये सारे, और कैल्शियम भी, पॉजिटिव आयंस बहुत सारे होते हैं सेल के बाहर, जबकि सेल के अंदर जो होता है पोटेशियम ज़्यादा होता है। तो एज कम्पेयर टू इनसाइड आउटसाइड देर आर मोर पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिवली चार्ज आउटसाइड एंड नेगेटिवली चार्ज इनसाइड। सेकेंड थिंग, पोलैरिटी की और बात कर लेते हैं हम। पोलैरिटी की अगर बात करें तो हाइड्रोफिलिक होती है आउटसाइड, ये जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे डिटेल में तब आपको पता चलेगा। और इनसाइड जो होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक, नॉट इवन इनसाइड, बीच में अगर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बाई लेयर्ड होती है, फोस्फोलिपिड बाई लेयर बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट लेयर और द आउटर लेयर, दिस इज द इनर लेयर। ये नॉन साइटोसोलिक साइड है, ये साइटोसोलिक साइड है, ये साइटोप्लाज्म या साइटोसोल की तरफ है, ये जो है आपकी नॉन साइटोसोलिक साइड है। सो जो नॉन साइटोसोलिक साइड है वो आपकी क्या है, हाइड्रोफिलिक ही है। लेकिन ये जो बीच का रीजन है सारा, ये सारा रीजन आपका हाइड्रोफोबिक होता है, ओके। दो चीज़ें ध्यान रखेंगे, चार्ज पॉजिटिव बाहर है, नेगेटिव अंदर है। बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक है, पोलर है, और बीच में हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, ओके। ये जो सेकंड मेम्ब्रेन का इनर पार्ट होगा केवल ये फिर से हाइड्रोफिलिक होता है। ये बिकॉज इसलिए है क्योंकि हेड और टेल होते हैं, दीज आर दी हेड, दीज आर दी टेल्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दूसरी मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ, तो ये जो टेल है ये सारी हाइड्रोफोबिक है ये, और हेड जो है ये आपके हाइड्रोफिलिक है। इनको हम और एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे डिटेल में इनकी हम। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ओके। आज केवल बेसिक्स बात करते हैं हम सेल का, इंट्रोडक्शन टू दी सेल। सो सेल के कुछ एग्जांपल्स लाइक लार्जेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है, सेल थ्योरी, ये सब आप किसी भी बुक से रेफरेंस ले सकते हैं। सो इट वाज द बेसिक्स ऑफ द सेल। यूकैरियोटिक पैराकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, क्या उनकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं एक बार क्विकली जो है प्लांट सेल को डिस्कस कर रहा हूँ। प्लांट सेल में सबसे आउटर क्या होती है, सेल वॉल होती है, ओके। सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो है एक लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, दिस इज अ वैक्यूल विच स्टोर वाटर और दी फूड और दी वेस्ट मटेरियल। उसके बाद आपके राइबोसोम्स होते हैं, फ्री राइबोसोम्स भी होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, आपके राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। और जो स्मूथ होती है वो बिल्कुल एज के पास होती है, सेल मेम्ब्रेन के पास, उस पर अटैच नहीं होते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपकी न्यूक्लियस से निकलती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, तो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास जो होते हैं राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर दी प्रोटीन सिंथेसिस। एनर्जी के लिए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं फॉर क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड दी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वैक्यूल हो गया। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ओके। प्लाज्मोडेस्मेटा हो सकते हैं, ये सारे प्लाज्मोडेस्मेटा हैं एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट करने के लिए। एंड उसके बाद जो है आपका गोल्जी बॉडीज हो सकती हैं, ओके। राइबोसोम्स फ्री भी हो सकते हैं, परोक्सीसोम्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। लाइसोसोम यहाँ शो किया हुआ है, ऑल्दो प्लांट्स में होता नहीं लाइसोसोम। सो इट वाज अबाउट द न्यूक्लियस, लाइक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जिस तरह से साइटोप्लाज्म होता है सेल में, उसी तरह से न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। सो दिस इज अ बेसिक प्लांट सेल। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा membrane.